ಕರ್ತನೇ, ಸರ್ವದಲ್ಲೂ ಉನ್ನತನೇ, ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ, ಪ್ರೀತಿಸುವ ತಂದೆ, ಕ್ಷಮಿಸುವ ಕರ್ತನೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಈ ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಐಎಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರೆಗೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವೆನು, ದೇವರಗಳ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನಿನ್ನ ಸತ್ಯತೆಯು ಇವುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದಂಥ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ, ಈ ದಿವಸ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರುಗಳ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಆಲಯದ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿವಸ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೊಂದು ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವುದೇ ನಿರಾಶೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ರೀತಿ ನಿನ್ನೆ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿಧ ವಿಧವಾದಂಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಅನೇಕರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮೀಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಬಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ, ಆಧಾರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನೇ ನಮಗೆ ಆಧಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನು ನೀಡಿ ನಡೆಸೆಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ಆಧೀನರಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿದ್ದು ನಡೆಸೆಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕೂಟವನ್ನು, ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಮೆನ್ನನ್ನು, ಯವನಸ್ಥರನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಾಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸರಿಯಾದಂಥ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು, ಸರಿಯಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದೆನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ.
ಆಮೇನ್. ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ 19ನೇ ಸಂಧಿ 3ನೇ ವಚನದಿಂದ 6ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. The book of Exodus chapter 19 verses 3 to 6. निर्गमन 19वां अध्याय 3 से 6 वचन. ನೀವು ಯಾಕೋಬನ ಮನೆತನದವರಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಏನೆಂದರೆ, ನಾನು ಐಗುಪ್ತರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ, ಹದ್ದು ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದೀರಷ್ಟೇ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡುವ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರಾಗುವಿರಿ. ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯು ನನ್ನದಷ್ಟೇ. ನೀವು ನನಗೆ ಯಾಜಕ ರಾಜ್ಯವೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನವೂ ಆಗಿರುವಿರಿ. ಇವೇ ನೀನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಾತುಗಳು ಎಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ आशीर्वाद नीडली. प्रभु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीर्वाद करे. एक बार एक गांव में एक किसान था जो अपने खेतों की देखभाल और रखवाली और फसल उगाया करता, और उसके साथ साथ में उन्होंने अपने आसपास में आंगन में जो है कई मुर्गियों को उन्होंने पाल कर रखी थी. एक दिन इस तरह से हुआ कि खेती में जाते समय पर उसने एक बड़ा सा अंडा देखा. उस अंडे को देखा तो उसको पता चला कि शायद हो सकता है कोई पक्षी का अंडा है, और घर पर लेकर आया और उसने मुर्गियों के अंडों के साथ में ही उसने रख दिया. और ऐसा हुआ कि वो अंडा के ऊपर जो है मुर्गी बैठकर वो अंडे के अंदर से एक पक्षी बाहर आई, छोटी सी पक्षी. लेकिन किसका था पता है? ये जो है उखाब यानी कि चील का अंडा था. और ये चील के बच्चा जो है इन मुर्गियों के बच्चों के साथ ही बढ़ता गया और कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के पश्चात इस तरह से हुआ कि ये बढ़ने वाला ये उखाब, ये चील जो है उन मुर्गियों के साथ में रहते समय अपने आप को ठीक उन्हीं की तरह बना लिया था. जिस तरह से मुर्गियां जो है इधर उधर दाने चुग कर अपने कीड़ों को खाकर ये वो देख करके चलते थे, वैसे ही वो चलने लगा, रहने लगा. लेकिन एक दिन जैसे ही वो बाहर देखता है कि ये छोटा सा चील जो है बच्चा ऊपर देखता है कि एक बहुत बड़ा पक्षी जो है बहुत ही ऊपर आसमान पर उड़ रहा है. उसे देख करके जो है बहुत ही ताजुब हुआ, और उसने वहाँ पर रहने वाली एक मुर्गी से पूछा, ये कौन सा पक्षी है, कौन है? तो तब उसने ये जो मुर्गी थी वो कहने लगी कि ये जो है पक्षियों का राजा है, वो है उखाब या फिर चील है करके कहती है. और उसे देख करके चुपचाप हो गई, और उसने कहा कि नहीं, हम तो जो है इस धरती पर है और इस धरती पर ही मर जाएंगे. वो तो चील है, वो आसमान में उड़ने के लिए बनाए गए हैं करके उसने उस मुर्गी के माँ ने जो है उस चील के बच्चे से कहा. प्रिय लोगों, आज के दिन जो है कई बार हम अपने जीवनों के अंदर कुछ इसी तरह से अपने उद्देश्य को खो दिए हैं. इस संसार में रहते समय, इस पृथ्वी पर रहते समय हम ये भूल चुके हैं कि गॉड परमेश्वर ने हम सभी के लिए ऊंचा उड़ने के लिए बुलाया है. वी आर कॉल्ड फॉर सोरिंग हाई. हम सभी लोगों को ऊंचा उड़ने के लिए या फिर उखाब की तरह उड़ने के लिए हमें बुलाया गया है. जो वचन हमने पढ़ा है निर्गमन उसका 19वां अध्याय 3 से 5-6 वचन के अंदर मूसा को परमेश्वर बुलाकर ये कहता है कि इजराइलियों को परमेश्वर ने अपने पंखों के ऊपर उठाकर उखाबों के उनको सुरक्षित रूप में लेकर आया है. इसीलिए लेकर आया है ताकि वो या फिर इजरायली लोग जो हैं उनके लिए एक याजक का राज्य बने, उनका प्रियजन बने और उनके मकसदों को पूरा करे कर. So pray logo, God has a purpose. Today
गॉड हैज अ पर्पस फॉर एवरी वन ऑफ अस। हम मसीही लोगों के लिए, हम सभी के लिए गॉड हैज केप्ट अ पर्पस, और परमेश्वर ने इस उद्देश्य को, इस मकसद को पूरा करने के लिए आज हमें रखा है। व्हाट इज दैट पर्पस? क्या है वो पर्पस? वो पर्पस ये है कि हम उनके राज्य के व्यक्ति बने। वी बिकम लाइक हिज होली नेशन, द किंगडम ऑफ प्रीस्ट, एंड नॉट ओनली दैट बट बाय हिज ओन, या फिर उनके राज्य के बनकर हम अपने जीवन को बिताए। तो हम किस तरह से करें, कैसे कहें, कैसे पाए? सो आज हम देखेंगे कि जिस तरह से परमेश्वर ने इन उखाबों को एक मकसद के द्वारा जैसा बनाया है, वैसे इनके द्वारा कुछ बातों को हम सीखना चाहेंगे। I just want to present these 3 stages of eagle's life and then how we can soar like an eagle. हम जो है, मैं ये देखूंगा कि किस तरह से एक उखाब अपने जीवन में ये 3 फेजेस या 4 फेजेस से गुजरती है और उसके बाद वो उड़ने लगती है, उखाबों की न ऊंचा उड़ने लगती है। ठीक उसी तरह से आज मैं और आप जो है अपने मकसदों को पूरा करने के लिए इस स्टेजेस से हम सीखेंगे। अगर ईगल के बारे में या फिर चील के बारे में हम देखते हैं, ये पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी या फिर राजा माना जाता है। कई देश जो है इसको अपने राष्ट्रीय एम्ब्लेम, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में उसे रखा गया है। और इतना ही नहीं, आकाश में सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी इसे माना जाता है। और इनकी आंखों की दृष्टि जो है बहुत ही तेज रहती है, और ये बहुत ही अच्छा फाइटर है। और इसलिए कई आर्मी या फिर इसके अंदर उन लोग अपने इस ईगल के नाम पर जो है उन्होंने कई फाइटर प्लेन्स जो है उन्होंने नाम रखा है। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग, इनके अलावा जो है सबसे बड़ी गुण जो है उनका ये होता है, मकसद ये है ईगल्स का, सोरिंग हाई, ऊंचा उड़ना, ऊंचा उड़ना। दैट इज द मेन थिंग। उसका मकसद जो है वही है करके देखते हैं। हाउ डज इट ग्रो? कैसे बढ़ता है, कैसे होता है? उसका पहला स्टेज अगर हम देखते हैं, दैट इज फर्स्ट पेज आई विल कॉल्ड एज द फीडिंग स्टेज, या फिर उनके खाने का एक समय। जब बचपन के टाइम पर बच्चे जब होते हैं, छोटे पक्षी जब होते हैं, उनको किस तरह से वो लोग खाना खाते हैं, हाउ दे वर फेड। इनकी जो माँ होती है, बड़े चील जब होते हैं, उन्होंने अंडा जब रखते हैं, अंडा रखने से पहले उन लोग बहुत ही ऊंचे स्थानों पर एकदम पहाड़ के इधर ऊपर जो है, पहाड़ों के ऊपर, उन बड़े बड़े ऊंचे स्थानों के ऊपर उनकी नेस्ट बनाते हैं या फिर घोंसले बनाते हैं, जहां पर वे अंडों को रखकर उसके बाद में जब बच्चे पैदा होते हैं उसके अंदर बहुत ही अच्छे से उसका बनाया जाता है स्टरिंग। उसका नेस्ट बनाने के बाद ये हमेशा अपने मुंह खोल कर रखते हैं। ये ईगल्स, ये उखाब जो है, अपने बच्चे जो है होते हैं, ये अपने मुंह खोल कर रखे रहते हैं। और क्यों इस तरह से मुंह ओपन रखते हैं? वाई दे कीप इट दैट ओपन? बिकॉज द मदर मे कम एनी टाइम एंड फीड देम। और ये उखाब की माँ जो है कभी भी आकर बच्चों को जो है खाना खिलाती है। सो दे आर डिपेंडिंग मोर ऑन द मदर फॉर देयर फीडिंग। और अपने मुंह को ओपन रखना बहुत जरूरी है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस। भजन संहिता 81 उसका 10वां वचन ये कहता है कि वे हमेशा अपने मुंह को खोल कर रखते हैं। ठीक उसी तरह से वचन ये बताता है कि आज मैं और आप जो है अपने मसीही जीवन के अंदर अपने मुंह को, यानी कि अपने मुंह को खोल कर रखना है। किसके लिए? परमेश्वर के वचन के लिए। पहला पत्र उसका 2 वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के वचन को जो है दूध पीने वाली बच्चे जिस तरह से दूध के लिए आफते हैं, वैसे ही जो है हमें परमेश्वर के वचन के लिए आफते रहना है या फिर पाते रहना है। द स्पिरिचुअल हंगर एंड थर्स्ट फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज इन दिनों के अंदर हम जब जी रहे हैं, सभी कुछ ऑनलाइन चल रहा है, बहुत सारे विषय, बहुत सारे तनाव, बहुत सारे फेजेस से हम गुजर रहे हैं। बट इन द मिड्स ऑफ दिस, आज हम अपने आत्मिक जीवन में उस भूख को मिटाने के लिए आज मुझे जो है अपने मन को, अपने हृदय को, अपने मुंह को जो है खोल कर रखना है, ताकि परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर हमें देता जाए। इस्राएलियों के जीवन में 40 साल उन्होंने जो है अपने जीवन में कभी उन्होंने खाने की कमी नहीं महसूस की है। दे ऑलवेज हैड मन्ना। परमेश्वर ने आकाश से उनको जो है खाना दिया करता था, मन्ना दिया करता था करके हम सुनते आए हैं।
बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जो है इन 40 साल के दिनों में परमेश्वर ने इन इजराइलियों को आत्मिक भूख और आत्मिक प्यास को भी इन्होंने मिटाया है। सबसे पहला वचन डायरेक्टली मूसा को जब 10 आज्ञाएं, ड्यूटोनोमी के धर्म व्यवस्था विवरण के वचन, दूसरी तरह से नया 10 आज्ञा, ये सब कुछ जो है परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइलियों को डायरेक्टली उनके पास लेके आकर दिया करके देखे। आत्मिक रूप से भी जो है उनके सारे वचनों को, सारी बातों को उन्होंने पूरा किया करके देखते हैं। दे वर फेड नॉट ओनली बट फिजिकली बट ऑल्सो द स्पिरिचुअली। टुडे, आज मैं और आप जो है अपने जीवन के अंदर अगर ऊंचा उड़ना है मसीह के जीवन के अंदर, परमेश्वर के वचन को, इन बातों को जो है हमें पाते जाना है। प्रॉफेट एजेकियल जो है, जब इस तरह से माना जाता है, इस तरह से हम देखते हैं कि प्रॉफेट एजेकियल को जो परमेश्वर ने वचन जब दिया, वचन जाकर जब उस तराई में, उस वैली में जाकर उन्होंने बोलने लगे, उन वचनों के द्वारा उस तराई के अंदर मरे हुए सब हड्डियां बन चुकी थी। हड्डियों के अंदर, उस स्कल के अंदर जो है जान आ गए करके देखते हैं। बाय व्हाट? बाय द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के द्वारा। आज मैं और आप अपने जीवन के अंदर भी कौन से भी स्तर से गुजरते रहे, विच एवर फेज वी मे बी गोइंग, बट वी नीड टू कीप इट ओपन आवर माउथ। हम अपने मुंह को जो है खोल कर रखना है, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा, हो सकता है कि मैं हड्डियों में मेरे अंदर रहे, लेकिन उस अवस्था के अंदर भी परमेश्वर जान दे देगा। As the prophet Ezekiel says that your word brings the fire in my bone, मेरे हड्डियों के अंदर जो है एक नई तरह से आग और जान डाल दे करके। So God is ready to bless us with His word. परमेश्वर अपने वचनों से हमें आशीर्वाद करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आज मैं अपने हृदय को, अपने मन को, अपने आंखों को खोलकर या मुंह को खोलकर उस वचन को पाने के लिए तैयार हूँ क्या? So this is what is God expecting, that if you want to soar high, keep your mouth open. This is the first stage we see in the eagle's life. दूसरा जो है हम देखते हैं वो ये है, these eagles are very well protected. The small eagles are very well protected by the mother. उसकी माँ जो होती है इन बच्चों को जो बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रखते हैं। अगर इनका घोंसला अगर जब बनाया जाता है, अगर आप देखते हैं किस तरह से होता है पता है, बाहर से जो है पूरे कांटों के और ब्रांचेस यानी कि झाड़ और जो कांटों के झाड़ियाँ होती हैं उधर से वो लगाए रहते हैं बाहर। उसके अंदर जो है पत्ते आते हैं, फिर वापस फर यानी कि फेदर, बहुत ही कोमल तरह से सब चीज़ों को, खापूस जैसे चीज़ों को डालकर वो बनाती है और उसके अंदर उनको रखते हैं। इतना सुरक्षित रहता है और एकदम ऊंचा इसलिए रखते हैं ताकि कोई भी पक्षी, कोई भी जानवर उनको हाँक ना करे या फिर उनको नुकसान ना पहुंचे, लेकर ना जा पाए। तो आज जो वचन हमने इस पूरे साल में हमने देखा है भजन संहिता 91 कि जो सर्वशक्तिमान के आश्रय में आता है वो हमेशा सुरक्षित रहता है। ऊंचा परमेश्वर जो है आज हमें ऊंचा रखकर हम सभी के लिए उस सुरक्षितता को देना चाहता है। किससे? किन बातों से? शैतान की हर एक चाल से, शैतान की हर एक बातों से परमेश्वर आज हमें सुरक्षित देना चाहता है। दिया है, ऑलरेडी दिया है। जो वचन हमने पढ़ा है निर्गमन उसके 19वें अध्याय के अंदर कहता है कि परमेश्वर ने हम सभी को अपने पंखों के ऊपर रखकर उठाकर लेकर आया है जिस स्थान पर उनको लेकर जाना है। सो आज मैं एक विश्वासी होने के नाते जो भी परिस्थिति में आज हूँ, जो भी स्टेज पर हूँ, जहाँ पर भी हूँ मैं, वहां तक परमेश्वर ने मुझे सुरक्षित रूप में लेकर आया है। तो आज यहाँ से जो है मुझे ऊंचा उड़ने के लिए सोचना है। आई हैव टू थिंक अबाउट दैट। मेरा पर्पस वो है। व्हाई ही हैज ब्रॉट टू मी हियर सो फार। जो स्थिति में भी मैं हूँ आज, विश्वास की स्थिति में, वहां तक परमेश्वर ने मुझे सुरक्षित रूप में लेकर आया है। लेकिन फर्दर ही वांट्स, पर्पस ये है कि मैं ऊंचा उड़ूं, उसके लिए जीऊं। सो दिस इज द सेकंड स्टेज वी सी। द थर्ड स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये स्टेज है, हम ये कहते हैं, इट इज द आई हैव केप्ट एज अ स्टरिंग स्टेज। स्टरिंग यानी कि हिलाना, या फिर हम कह सकते हैं जो भी चीज को जो है हिलाते हैं या फिर मोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, मरोड़ना नहीं बल्कि हिलाना, इस तरह से कह सकते हैं। What is this stirring stage? ये क्या है stirring stage? Stirring stage is like a testing period. एक ऐसा समय है जहां पर हमारी परीक्षाएं होती है। किस बात की परीक्षा होती है?
ये क्या करते हैं पता है, उतने जितना सुरक्षिता देने के बाद जैसे ही वो पक्षी जब बढ़ने लगते हैं, बड़े होते हैं, बढ़ने के बाद उनको उड़ना है, उनको वहीं पर रहना नहीं है, घोंसले के अंदर कंफर्ट जोन में ही नहीं रहना है। माँ जानती है और इसीलिए क्या करते पता है, वो आने के बाद वो घोंसले के अंदर जो भी सॉफ्ट चीज़ें रखी होती है, पंख है, कापूस है, कॉटन है, ये सारी चीज़ें सब निकाल कर फेंकती है। और उसके बाद क्या बचा है उसके बीच में, अब वहाँ पर जो है कांटों का जो ब्रांचेस है, जो थॉर्न्स है, वो सब चीज़ें जो है इनको अनकंफर्टेबल करते हैं। और अनकंफर्टेबल करने की वजह से वो बच्चे जो है वहाँ पर रह नहीं सकते, वो बड़े हो गए हैं तो अब इसलिए उनको बाहर आना है। तो बाहर आने का जब प्रयास करते हैं और उनको उठाकर जो है ऊपर से छोड़ती है, और जैसे उड़ने लगते हैं, अपने सीखने लगते हैं, अगर गिरने लगते हैं तो माँ आकर उनको पकड़ लेती है। दिस स्टेज इज कॉल्ड एज द स्टरिंग स्टेज और द टेस्टिंग स्टेज, वेयर वी आर लर्निंग टू सोर हाई। ये ऐसा समय है जहाँ पर हम उड़ने के लिए सीखते हैं। जैसे उकाब जो है उड़ने के लिए सीखते हैं, ठीक उसी तरह से आज मैं और आप जो है उड़ने के लिए सीखते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने विश्वास के अंदर उसी स्तर पर कंफर्टेबल जोन में ही नहीं रहे, खाली वचन को पाते ही नहीं रहे, परमेश्वर के सुरक्षिता के अंदर ही ना रहे, उस कंफर्ट जोन में ही ना रहे, बल्कि उड़ना सीखे, सो दैट वी विल लर्न हायर, सोरिंग हाई। परमेश्वर के लिए उड़ना चाहे, और ये उनका मकसद है। दिस इज द पर्पस। So what happened? What is this period? We can say this period is like a testing period for all of us. We are all going through, many of us. हो सकता है कि हम टेस्टिंग या टेम्पटेशन या फिर इन सारी बातों से होकर गुजरते समय ऐसा लगता है कि वाई दिस इज फेज इज देयर, ये क्यों इस तरह का फेजेस है। लेकिन ये फेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी जगह पर हम उड़ना सीखते हैं। वी लर्न टू सोर हाई, and that is the purpose of the eagle, and that is the purpose of every Christian believer to soar high. हम एक ही जगह पर, एक स्थान पर जो है रुकने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर हमें ऊंचा उड़ने के लिए आज बुला रहा है। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 2 वचन से 4 वचन तक हम ये देखते हैं, जहाँ पर हमारे विश्वास की परख जो है आग के अंदर झोंक कर डाला जाता है, और उसमें से जो खरा निकलता है वही परमेश्वर के लिए जो है योग्य है करके हम देखते हैं। सो टुडे एज वी यू एंड आई, our main purpose is to soar high. So looking up high. So ये तीसरा स्टेज हम देखते हैं जहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि हम ऊपर उड़ते जाएं। फोर्थ स्टेज जो है हम ये देखते हैं वो ये है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, इट इज़ द लास्ट स्टेज वी कैन से इन द ईगल्स लाइफ, दैट इज कॉल्ड एज द मोल्टिंग स्टेज। मोल्टिंग स्टेज ऐसा समय होता है कि चील जो है अपने 30 साल या 40 साल की उम्र के बाद और उनको अगर जीना है तो उनका ऐसा हो जाता है, एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है, उनके जो पैक होते हैं, जो उनका चोंच होता है, पंख होते हैं, उनके फर होते हैं, सब जो है, और उनके नेल्स होते हैं, सब जो है बूढ़े होने के कारण निकलने लगते हैं। और इसलिए जाकर के एक ऐसे जगह पर बैठ जाते हैं, करीबन 150 दिन ऐसे फेज में आ जाते हैं जहाँ पर वो खुद वो सब चीज़ों को निकालने लगती है, और धीरे धीरे इन दिनों के अंदर वापस से उसे नए पंख आते हैं, नए नाखून आते हैं, नए चोंच उनको देती है, और ये आने के बाद जब वो वापस से स्ट्रेंथ पा लेते हैं, मोल्टिंग स्टेज जाने के बाद वापस से 40 साल जो है और वो जीती है करके बताते हैं। सो इट इज़ वेरी मच ट्रू, और ये सच बात है। ये मोल्टिंग स्टेज जो है, ये स्टेज हम ये कहेंगे इट इज़ अ रेस्टोरेशन स्टेज, या फिर वापस से हमें एक नए जोश देने का, नयापन देने का, पुनर्निर्माण करने का एक समय होता है। सो दिस इज द स्टेज इज इम्पोर्टेंट। सो मेनी ऑफ अस एज वी आर रनिंग आवर फेथ और रनिंग आवर रेस, हम अपने विश्वास के जीवन को जीते समय हो सकता है कि आज हम बहुत सारे लोग जो है ऐसी स्थिति में आ चुके हैं जहाँ पर हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पंख जो है निकलते जा रहे हैं, हमारे नेल्स जो है, नोक जो है कई तरह से बेंड हो चुके हैं, या फिर बहुत ही काम नहीं कर रहे हैं। वी आर फीलिंग वेरी ड्राइड अप बहुत सारे विषयों के अंदर। आज इस परिस्थिति में जीते समय ऐसा लग रहा है कि नथिंग इज वर्किंग आउट, लेकिन ये ऐसा स्टेज है जहाँ पर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर इन सारी बातों को निकलने दे, और नयापन परमेश्वर जो है हमारे जीवन में देगा।
इसलिए एशाया उसका 40वां अध्याय के अंदर 31वें वचन से जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर ये कहा गया है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे उखाबों की तरह एक नए बल को प्राप्त करेंगे। आज यहोवा की बाट जो है उखाबों की तरह नया बल प्राप्त करे, और मकसद यही है कि मैं और आप जो है आकाश में उड़ने वाले या फिर उड़ने वाले बने, जो ऐसे विश्वासी जो परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं। सो परमेश्वर आज मुझसे और तुमसे ये अपेक्षा कर रहा है कि मैं और आप जो है परमेश्वर के लिए होली नेशन यानी कि पवित्र राष्ट्र बने, द होली किंगडम ऑफ गॉड, उनके राज्यकार बने। सो दिस इज व्हाट गॉड इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। परमेश्वर आज हम सभी से ये चाह रहा है। सो लेट अस प्रे टू गॉड दैट लॉर्ड हेल्प मी टू सोर हाई लाइक एन ईगल फॉर यू। परमेश्वर आपके लिए एक पवित्र राज्य बनकर, एक पवित्र राष्ट्र बनकर, याजकों का राज्य बनकर मुझे जीने के लिए आप सहायता करें, जो आपकी बुलाहट है। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಈ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬಾರಿಗಳಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಿಮೆ ತರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬಾಳುವುದೇ ಅದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡು. ನಿನಗಾಗಿ ನಾವು ಪವಿತ್ರರಾದಂಥ ದೇಶವನ್ನು, ಪವಿತ್ರರಾದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡೆಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿನಗೆ ಆಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಒಂದೇ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಸಭಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು. ನಮ್ಮದು ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರದ ಆರಾಧನೆಯು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಮೆನ್ ಅವರು ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು MYF ಮತ್ತು TCF ಕೂಟ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಝೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರಿ, ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಜನರಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ GNM, ಇದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ದು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸೋಮಯ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಓಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇನ್ನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ आदर्श बेगने। जितने लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है कृपया आप अपने आप को वैक्सीन ले लें और सुरक्षित रखें। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ KPCA स्कॉलरशिप फॉर्म्स। KPCA का स्कॉलरशिप फॉर्म्स हम सभी स्टीवर्ड्स के द्वारा आपके घरों में पहुंचा रहे हैं और ये जो है स्कॉलरशिप फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को दिया जाएगा। स्मॉल अमाउंट, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट दिया जाएगा, लेकिन ये उन्हीं के लिए है जिनका इनकम 10,000 से कम है हर महीने। और इसके लिए आपको एक इनकम सर्टिफिकेट देना होगा और उसके साथ साथ जो है बच्चों का रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन में किसी को भेजा गया है, वो रिपोर्ट कार्ड आपको देना है और जल्द से जल्द फॉर्म भरकर उसके ऊपर फ़ोटो लगाकर सारे डिटेल्स भरकर जल्द से जल्द अपने स्टीवर्ड्स के हाथ में दीजिए। 15 जुलाई के पहले आप इस फॉर्म को मुझे तक पहुंचाना है। सो परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद करे, देवर ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋಣ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ದೇವರು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತೆರೆಯಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಆಯಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರೆ। ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ, ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಒಂದೇ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್। ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ
ನಾ ಬದಲೇನು ಕೊಡುವೆ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯ ಬರ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಯೋ ಏನು ಸಾಲದು. ಆಮೆನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ತ್ರೇಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸದಾಕಾಲ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. Praise the Lord. God bless you all. Have a good day. Amen. We thank you for your presence, O God. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ದಿನ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ದಿನವು ಎಷ್ಟೋ ಮಧುರವು. ಆ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಪ್ಪ. Fill us with your presence, O God. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀನೇ, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೇ. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀನೇ, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೇ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ.